रेजोनेंस। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जहाँ पे हमने देखा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं। जब हमने कल उसका लोइस्टॉल स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था तो हमने देखा कि उसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं। उसी तरह से जब हमने ओजोन में फॉर्मल चार्ज निकाला था तो उसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम किसी एक स्ट्रक्चर के साथ ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट? Now this is not a theoretical this thing which I am saying, but it is been practically proven कि अगर कोई भी हम एक multiple bonded systems लेते हैं तो it shows the characteristics, such characteristics which are not compatible with either single bond or double bond, ठीक है? जैसे let's say ये जो resonance वाला process था, this was given by a scientist whose name was Heisenberg, right? अब इसने क्यों ये वाला हमें दिया, प्रोसेस दिया to explain the characteristics of certain molecules, right? So he explained the characteristics of certain molecules on the basis of resonance. Like for example, if we are taking the structure of ozone, the structure of ozone can be represented as ozone double bond O, single bond O, right? Now there's going to be 2 lone pair of electrons over here, और यहाँ पे कितने होंगे 4, और यहाँ पे it is going to be 6. This is the structure of ozone, right? You can see over here that the structure of ozone has one single bond. तो single bond की जो bond length होती है that is of the order of 148 picometers, okay? And there is a double bond, और double bond की जो होती है that is 121 picometers. But जब ozone में bond length measure करी गई, the bond length of both the bonds was equal. Of both bonds was equal. अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हम लोग लें तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर्स, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर्स। पर जब ओजोन की बॉन्ड लेंथ मेजर करी गई तो दोनों की जो बॉन्ड लेंथ थी दैट वाज सेम एंड दैट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 128 पिकोमीटर्स। दिस गेव अ बिग कंफ्यूजन टू द साइंटिस्ट कि ऐसे कैसे हो गया कि जब उसमें एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है और बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है बिटवीन 128 एंड 148 which is equal to 128, ठीक है? Regarding this there were experimentations which were done and it was seen that ozone is a resonance hybrid of 2 structures. Means कि यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होता रहता है। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 आ गए लोन पेयर, यहाँ पे और यहाँ पे 6 लोन पेयर्स आ गए, ठीक है? सो इट इज सेड दैट ओजोन में जो ये डबल बॉन्ड है कभी यहाँ शिफ्ट हो जाता है, कभी ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट? सो द मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स शिफ्ट द double bond in case of ozone to both the positions, right? अब ये जो 2 structures हैं, this is structure 1, this is structure 2. इन दोनों को हम लोग क्या बुलाएंगे? Both these structures they are said to be resonance hybrids of each other. Okay, they are said to be resonant hybrids of each other. इसका मतलब कि जो बीच का इसका स्ट्रक्चर होगा that is the real structure, और जो बीच का इसका स्ट्रक्चर है that is ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों साइड शिफ्ट होता रहता है which can be shown by dotted lines. ओके, जब इस तरह का स्ट्रक्चर प्रपोज
किया गया तो इस स्ट्रक्चर में इट वाज सीन कि द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस वाज आल्सो 188 picometers and bond length of this was also 188 picometers, right? Therefore the reason or the criteria कि जो ओजोन है उसमें बॉन्ड्स शिफ्ट होते रहते हैं, that was proved. Hence the definition of resonance was given. तो लिखो क्या होता है resonance? When a molecule cannot be represented by, when a molecule cannot be represented by a single structure, but its characteristic properties can be described by two or more than two structures, then the actual structure is said to be, resonance hybrid of these structures. Said to be resonance hybrid of these structures. ठीक है? So यहां पे जो ये वाला स्ट्रक्चर है, this is the actual structure, और ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं they are the contributing structures, क्योंकि ये दोनों contribute कर रहे हैं towards this structure. So structure 1 and structure 2 को हम क्या बुला रहे हैं? Contributing structure, और जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है that is the actual structure, right? अब रेजोनेंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको ऐसे as normal molecules रिप्रेजेंट नहीं करते. There are certain rules जिससे हम लोग रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. So let's go on to conditions of writing resonance structure. Conditions of writing conditions for writing resonance structures. Right? So जब हम लोग structures को write करते हैं, the first one is the contributing structures should have same atomic positions. The contributing structures should have same atomic positions. So जैसे आपने अभी ओजोन की मॉलिक्यूल में देखा, हम लोगों ने ऑक्सीजन की पोजीशंस को चेंज नहीं किया. हमने तीनों स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन की पोजीशंस थी उसको सेम रखा था ना, इसी तरह से हमने रखा है. This is the position of oxygen. So इसमें atoms की position को हम change नहीं कर सकते. ठीक है? Then number 2, contributing structures should have the same unpaired electrons. Total number of unpaired electrons same रहने चाहिए. ठीक है? So contributing structures should have same unpaired इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे 2 है, इसके पास 4 है, इसके पास 6 है. सो टोटल हो गए 2 and 4 is 6, 6 and 6 is 12. जो इसका सेकंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसपे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी सेम. ठीक है? सो दिस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विल आल्सो हैव 12 unpaired electrons. Okay? Then number 3, the contributing structures should have nearly same energy.
दोनों कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स 1 और 2 जो है उसकी जो एनर्जी होगी दैट शुड बी सेम, ठीक है। देन नंबर 4, द स्ट्रक्चर्स should be written that no negative charge is the structure should be written in such a manner that the negative charge should be present, negative charge should be present on electronegative element and positive charge should be present on electropositive. ठीक है, क्या मतलब इसका हुआ? अब जब हम लोग ओजोन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हम इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तीनों ऑक्सीजन है, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। पढ़ा था ना हमने पिछले वाले चैप्टर में कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर डबल बॉन्ड में या इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में चेंज आता है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर। इसको हम शो कर सकते हैं से विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है दैट इज दिस, ओके। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं हम, तो इसके ऊपर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिमिलरली इसके ऊपर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं कि यहां से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से शिफ्ट करेंगे इधर। इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से शिफ्ट करेंगे टू फॉर्म अ बॉन्ड और यहां से जो ये बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा टू मेक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जहां से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की यहां पे वैकेंसी हो गई, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसलिए इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। इस पे मत शो करो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे शो करते हैं। हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, ये वाले यहां शिफ्ट हो गए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, जहां से शिफ्ट हुए उस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से शिफ्ट हुआ है बॉन्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके लिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर जहां से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। देन नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट लिखो, इन contributing structures like charges should not be present on adjacent atoms. एडजेसेंट एटम्स कौन से होते हैं? जो एटम साथ साथ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दो एटम साथ साथ हैं, तो इन दोनों पे सेम चार्जेस प्रेजेंट नहीं हो सकते। अगर इस पे पॉजिटिव है तो नेक्स्ट पे नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। अगर इस पे पॉजिटिव है और इस पे भी पॉजिटिव हो गया तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर राइटिंग रेजोनेंस। नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ रेजोनेंस, यहाँ पे एक चीज जो बहुत ज्यादा रेजोनेंस को इफेक्ट करती है या मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी?
रेजोनेंस एनर्जी जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल, ठीक है, और दैट इज नोन एज actual bond energy, right, minus energy of the most stable resonating structure. Energy of the most stable resonating structure. Let's explain this with the help of a graph, right? हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया. Let's say कि this is how energy is increasing. Okay, अब यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, right? कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर्स? हम बोल रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बन गया E1, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर. उस फर्स्ट स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है let's say that is E1. एक सेकेंड स्ट्रक्चर बना, let's say इसकी एनर्जी that is equal to E2, ठीक है. और एक थर्ड स्ट्रक्चर बना, लेट्स से उसकी एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू E3, पर जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है दैट इज E0. ओके, अब एनर्जी जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की होगी वो सबसे कम होगी. सो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं E1, E2 और E3, तो जो E3 है वो इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे कम एनर्जी हुई. आप देख रहे हो ना, एनर्जी इस तरह से इंक्रीज कर रही है. E1 सबसे हाईएस्ट एनर्जी, फिर उसके बाद E2, फिर उसके बाद E3. तो E3 इन तीनों रेजोनेटिंग एनर्जीज में से सबसे कम है. सो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी? डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एंड द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी. तो ये जो डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, दिस इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है. This difference is going to be resonance energy. Clear हो गया? Characteristics लिखो resonance के. Characteristics of resonance. Number 1, the contributing structures do not have any real existence. The contributing structures do not have any real existence. So इसका मतलब ये जो structures होते हैं they are only imaginary, hypothetical. Okay, just to explain the properties of the bond length, हम ये वाले structures को imagine करते हैं. Then number 2, the bond length in resonating structures become equal. Bond length in resonating structures is equal. Number 3, the resonance hybrid has lower energy and thus greater stability. Has lower energy and thus greater stability. ठीक है. And number 5, greater the resonance and resonance energy, greater is the stability of the molecule. Greater is the stability of the molecule. मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाली जो रेजोनेंस एनर्जी जो हम डिफरेंस ले रहे थे, जो हमने डिफरेंस लिया यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और साथ में ही रेजोनेंस भी ज्यादा होगा. So we are saying greater the resonance energy, greater is going to be the stability. ठीक है. So this is the concept of resonance. Then in the next class we will do polarity of bonds. Okay.